So hello students. So we already covered two kind of classifications. First was on the basis of the physical state of dispersed phase and dispersion medium particle, means the physical state of solute and solvents. And the second classification was based on the types of interaction between solute and solvent, means dispersed phase and dispersion medium. Lyophilic, lyophobic, these were two classifications on the basis of type of interaction, whether they hate each other, whether they like each other. And now the third type of classification is based on the particles of the dispersed phase, या you can say the types of particles of the dispersed phase. solute के पार्टिकलों की टाइप पे डिपेंड करेगी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन. द first type under this classification is multimolecular colloids, and the second one is macromolecular colloids, and the third one is associated colloids. So let us see what is first multimolecular colloids. multimolecular colloids, तो क्या colloids, इनमें क्या है खास बात, देखो जरा ध्यान से. इन these kind of colloids the solute particle, जो dispersed phase के particle है, उनका साइज कम होता है. वो अगर वो अकेले रहेंगे, if they remain alone, then they will not fall in the category of colloidal sol, because if any solution has to be colloidal solution, then its particle size should be more than 1 nanometer or less than 1000 nanometer. If a solution has to fall in the category of colloidal solution, then its particle size should be between 1 nanometer to 1000 nanometer. But actually in multimolecular colloid, if these molecules are alone, then their size is less than 1 nanometer. So इनका साइज है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है. लेकिन मल्टी का मतलब क्या है, लेकिन ये क्या करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं. मल्टी मीन्स दे फॉर्म एग्रीगेट, ये इकट्ठे हो जाते हैं. इसकी वजह से जब ये इकट्ठे हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, then they form a bigger size particle, and the size of this particle lies between 1 nanometer to 1000 nanometer. So अब ये colloidal particle बन गया. So वैसे ये colloidal particle नहीं होते हैं multimolecular colloid. multi means बहुत सारे molecule जब जुड़ जाते हैं, aggregate बना लेते हैं, गुच्छा बना लेते हैं, then they form colloidal solution, then their particle size lies in the range of colloidal range 1 nanometer to 1000 nanometer. Otherwise the size of the individual particle is less than 1 nanometer. So these are called multimolecular colloids. इनकी एग्जांपल होती हैं गोल्ड सोल का मतलब गोल्ड का जो colloidal solution बनाते हैं. सल्फर से जो हम colloidal solution बनाते हैं, ये एग्जांपल्स हैं इनकी multimolecular colloids की. The second types of colloidal solution are macromolecular colloids. What are macromolecular colloids? As its name suggesting, macro means bigger in size. Macro means bigger, micro होता है छोटा, macro means बड़ा, bigger in size. So ऐसे molecular colloid जिनके individual particle ही इतने बड़े होते हैं, उनको जुड़ना नहीं पड़ता आपस में, they have no need to come together alone. Their size lies in the colloidal range like 1 nanometer to 1000 nanometer. ये इनका साइज अपना ही इतना बड़ा होता है इनके पार्टिकल्स का, सल्यूट पार्टिकल का, कि वो कोलाइडल रेंज में ही होते हैं. पहले ही इनका साइज 1 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, 1000 से कम होता है नैनोमीटर से. तो ऐसे जो हैं colloidal solution, वो they fall in the category of macromolecular colloid. So dispersed phase particles are large molecules with size 1 nanometer to 1000 nanometer. Example है इनकी प्रोटीन, स्टार्च, पॉलीमर्स, बिगर साइज मोलिक्यूल. प्रोटीन भी बहुत सारे, प्रोटीन का साइज बड़ा है, स्टार्च का बड़ा है, और भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलीमर्स जो कि बहुत सारे मोनोमर से मिलके बनते हैं. सो द पॉलीमर्स आर द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग सो मैनी मोनोमर्स. सो जो बिगर साइज मोलिक्यूल्स है, दे फॉर्म मैक्रोमोलिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन. इनकी एग्जांपल मैंने आपको बता दी. क्या है एग्जांपल? प्रोटीन, पॉलीमर, स्टार्च, दे फॉर्म मैक्रोमोलिकुलर colloids. So the next type of colloidal solution is associated colloidal solution. It is slightly similar, associated colloidal solution slightly similar to the multimolecular colloids.
As in multimolecular collides, the individual size of the particle is small, and they come together, they form aggregate, then they fall in the category of collider solution. In the same way, associated molecular जो collide होते हैं, इनका भी जो particle size है वो कम ही होता है, इनको भी क्या होना पड़ता है, इकट्ठे होना पड़ता है, इनका भी aggregate बनाना पड़ता है, तभी ये they fall in the category of कोलाइडर सोल्यूशन. सिमिलैरिटी है इसमें एसोसिएटेड कोलाइड्स में और मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स में, यही सिमिलैरिटी है कि इसमें भी इनको एग्रीगेट बनाने पड़ते हैं सोल्यूट को. ये इनका इंडिविजुअल सोल्यूट पार्टिकल का साइज़ है वो कम होता है. लेकिन डिफरेंस क्या है, ये आपको समझना है कि डिफरेंस ये है कि इन एसोसिएटेड कोलाइड्स व्हाट हैपन इफ़ द कंसंट्रेशन इज़ लो. अगर ये सोल्यूट पार्टिकल की कंसंट्रेशन क्या है, लो है, तब ये एग्रीगेट नहीं बनाते, तब ये एज ए इलेक्ट्रोलाइट एक्ट करते हैं. ये जो एसोसिएटेड कोलाइड है, अगर इनमें कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट या कंसंट्रेशन ऑफ या कह लो क्वांटिटी सोल्यूट की कम है, तब ये कोलाइडर सोल्यूशन एक्ट नहीं करते, तब ये क्या करते हैं, एज ए इंडिविजुअल इलेक्ट्रोलाइट एक्ट करते हैं एज ए. तो लेकिन अगर इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए सोल्यूट की, फिर ये क्या करते हैं, एग्रीगेट फॉर्म कर लेते हैं, तो तब ये बन जाते हैं कोलाइडर सोल्यूशन. सो डिफरेंस बिटवीन एसोसिएटेड कोलाइड्स एंड मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स इज इन मल्टीमोलिकुलर कोलाइड दे फॉर्म एग्रीगेट whether the concentration is low, whether the concentration is high. But in associated collides, if the concentration of the solute particle, the dispersed phase particle is less, then they will not form collider solution, they will not aggregate, they will not come together. But if the concentration is more, only then they will come together and form collider solution. So this is the difference. And what is the example of associated collides is the SOB molecule. ये बहुत ही ज़्यादा important example है SOB molecule की. So before going into deep we have to understand what is SOB molecule, what is its formula, what is its structure, and then we will go deeper into this topic. The formula of SOB is C15H31COONA. C15H31COONA ये हमारा एक फार्मूला है. ये सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं इसको. ये सोडियम है, चेन ऑफ, ये इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड. सो लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम और पोटाशियम, यहाँ पोटाशियम भी हो सकता है, सोडियम और पोटाशियम कार्बोक्सिलिक एसिड. लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम और पोटाशियम कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड इसको बोलते हैं. तो ये हमारे पास क्या है, SOB का फार्मूला है. ये SOB का जो फार्मूला है, इसको आपने अगर समझना है तो ध्यान देना पड़ेगा. ये जो C15 है, 15 कार्बन है, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, इसमें हाइड्रोजन भी है, कार्बन, ये दो पार्ट है इसके. एक तो है ये हाइड्रोकार्बन, ये है दूसरा जो पोलर एंड है. पोलर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इसमें है. तो ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है, ये C15 वाली, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे वेवी टेल से. ऐसे ये लाइन्स हम ऐसे लगा देते हैं, वेवी टेल. तो वेवी टेल से हम इसको किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स को. और ये जो ये बड़ा CONA इसको रिप्रेजेंट करते हैं हेड से. तो इसमें दो केस है, दो पार्ट है SOB के, एक हेड एक टेल. टेल है इस कार्बन की और हेड है इस CONA का. तो ये जो है हेड, ये पोलर पार्ट है, और ये टेल है वो क्या है, नॉन पोलर है. ये टेल है वो नॉन पोलर पार्ट है. अब ये हेड क्या है, हेड लाइक वाटर. इसका जो हेड है SOB का, इट लाइक्स वाटर, इट हेट ऑयल. और जो टेल है ये लाइक क्या करती है, ऑयल को, और हेट क्या करती है, वाटर. ये टेल है, ये वाटर को पसंद नहीं करती, हेट वाटर, लाइक ऑयल. जो हेड है वो वाटर को लाइक करता है. ये आपने बस सिंपल सी बात याद रखनी है. हेड है वो वाटर को लाइक करता है, टेल है वो वाटर को लाइक नहीं करता. टेल किसको लाइक करती है, ऑयल को. तो ये SOB मोलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर है. अब जो एसोसिएटेड कोलाइड है वो कैसे फॉर्म होते हैं, SOB मोलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है, अब जरा ध्यान दो. जब तो कंसंट्रेशन कम होती है, ये SOB मोलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, हेड है ये टेल है, हेड है ये टेल है. जब तो ये SOB मोलिक्यूल की कंसंट्रेशन कम है तो ये ऊपर तैरते रहते हैं, हेड टुवर्ड द वाटर एंड टेल्स ऑन द अपसाइड. ये ऐसे तैरते रहते हैं ये पानी के ऊपर. लेकिन जब इनकी कंसंट्रेशन क्वांटिटी SOB की बढ़ती है, when we increase the quantity of the SOB molecule, then they have to go into the water, and what they do, and in the water they form a aggregate. कैसे aggregate बनाते हैं